قصہ اول شیطان جان نہ مارے۔ پھر بتاؤ مجھے اس نفرت کا جو تمہارے اندر بھری ہے، جس نے تمہیں میری نفرت کو پہچاننے پر مجبور کر دیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں۔ یحییٰ نے جیکب کی طرف دیکھ کر کہا۔ جیکب نے لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنے ساتھ بیٹھے باقی دو لوگوں کو۔ ان کی نظروں میں بھی سوال تھا۔ جیکب نے ٹکیلا کا ایک کڑوا گھونٹ حلق میں انڈیلا اور پھر کہنا شروع کیا۔ وہ نفرت تھی جو مجھے میری ذات سے ہے۔ وہ تینوں شخص ہموطن گوش تھے، خاص کر یحییٰ، بالکل ویسے ہی جیسے تمہیں اپنی ذات سے محسوس ہوتی ہے۔ ہاں میں خود سے نفرت کرتا ہوں، اور اس کی وجہ شیطان ہے۔ جیکب کے کہنے پہ ان تینوں افراد نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ مائیکل نے پوچھا تو جیکب نے گہرا سانس بھرا۔ آج سے 21 برس قبل امریکہ کے گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا تعلق ایک قدامت پسند یہودی گھرانے سے تھا۔ میرے والد ایک ربائی تھے، میں بھی انہی کی طرح ایک ربائی بننا چاہتا تھا۔ ہم اکثر عبادت میں شریک ہوتے۔ بہت زیادہ مذہبی گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے میرا دوسرے مذہب کو، ان کے لوگوں کو جاننے کا واسطہ بہت کم پڑا تھا۔ گاؤں کے عیسائی خاندان ہمیں پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ سب یہودی کہہ کے ہمارا مذاق اڑاتے تھے، اور اس بات نے میرے دل میں ان کے لیے نفرت بھر دی تھی۔ میں نے ہائی اسکول ختم کرنے کے بعد باقاعدہ ربائی بننے کی تعلیمات حاصل کرنا چاہی، لیکن والد نے روک دیا۔ وہ یہاں پھیلی نفرت سے بیزار ہو گئے تھے، حالانکہ وہ ذاتی طور پر ایک امن پسند یہود تھے، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ مجھے ایک کامیاب پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چاہتے ہیں کہ میں مذہب یہود کے ایک سفیر کا کام کروں۔ میں کسی کو تبلیغ نہیں کروں، بس لوگوں کو سمجھاؤں کہ ہمارا مذہب بہت اچھا ہے۔ میں ان سے بہت محبت کرتا تھا، اور ان کے مشن کو لے کر نیو یارک چلا آیا۔ یہاں مجھے صرف عیسائی ہی نہیں بلکہ مسلمان، کمیونسٹ، آرتھوڈاکس، ملحد سمیت کئی اقوام ملے۔ میں ان سب سے چاہ کر بھی دوستی نہیں کر پایا۔ میرے عیسائی روم میٹ میرے ساتھ رہنے سے انکار کرتے تھے، اور مسلمان کلاس میٹ جادوگر کہہ کے میرا مذاق اڑاتے تھے۔ مجھے کچھ لوگوں کی وجہ سے ان کی پوری قوم سے نفرت ہوتی چلی گئی، اور خاص کر تب جب سارا میری زندگی میں آئی۔ جیکب نے کہہ کے گہرا سانس بھرا تھا۔ ٹکیلا کی بوتل آدھی ہو چکی تھی۔ یحییٰ کا بھی دوسرا پیک چل رہا تھا۔ جان نے اپنی جیب سے سگریٹ نکال لی تھی، البتہ مائیکل عدم دلچسپی سے بیٹھا تھا۔ اس کا جام اب تک بھرا ہوا تھا۔ جان نے سگریٹ باقیوں کی بھی طرف پیش کی، لیکن سوائے مائیکل کے کسی نے بھی نہیں لی۔ جان سگریٹ سلگا چکا تھا۔ اس کا دھواں ان سب کے چہروں کے درمیان حائل ہوا۔ سارا ایک کیتھولک عیسائی تھی، بہت حسین۔ مجھے علم نہیں تھا، لیکن کب میں اس سے محبت کرنے لگا۔ سارا بھی کلاس میں میری تعلیمی کارکردگی سے کافی متاثر تھی۔ جب میں نے سارا سے محبت کا اظہار کیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ بدلے میں اس نے بھی پسندیدگی ظاہر کی۔ ہم ساتھ ساتھ گھومنے لگے، لیکن یہ سب زیادہ عرصہ نہیں چل سکا۔ جیسے ہی سارا کے گھر والوں کو پتہ چلا، ان لوگوں نے سارا پہ پابندی لگا دی۔ سارا نے مجھ سے مدد مانگی، میں ساتھ دوں تو وہ ہمارے لیے خاندان سے لڑے گی، لیکن میں ڈر گیا۔ اس کا خاندان بہت طاقتور تھا، اور میں گاؤں میں ربائی کا بیٹا۔ میں نے سارا سے دوری ہی میں بہتری سمجھی، اپنی بھی اور اس کی بھی۔ اس نے اس کے بعد دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا، لیکن کالج چھوڑ دیا۔ میں سارا کے بعد اداس رہنے لگا۔ مجھے خود سے غصہ تھا، میں نے اس کے ساتھ دھوکہ دیا تھا۔ میں بزدل تھا۔ میں نے عبادت کرنا، تورات پڑھنا چھوڑ دی تھی۔ آہستہ آہستہ میرا دل پڑھائی سے بھی اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہاں میری کسی سے بھی دوستی نہیں تھی۔ میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا، بالکل تنہا۔ اور پھر ایک دن مجھے سیموئل ملا۔ وہ ایک فریش مین تھا، بہت اچھا لڑکا تھا۔ میری چند ہی دنوں میں اس سے دوستی ہو گئی۔ ہم ساتھ ٹینس کھیلنے لگے، کلب جانے لگے۔ وہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور اکثر میری مالی مدد بھی کر دیا کرتا تھا، خاص کر تب جب میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ ایک اتنا امیر قبیل لڑکا بھلا مجھ جیسے غریب یہودی سے
क्यों कोई ताल्लुक़ रखता है, इतना अच्छा दोस्त क्यों बन गया। मैंने उससे एक दिन पूछा तो कहने लगा क्योंकि यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। मुझे उस बेचारे के लिए बहुत दुख हुआ। उसने कहा सब उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई उसे पसंद नहीं करता। फिर मेरी और उसकी और गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन उसने मुझे अपने घर मदऊ किया किसी मजहबी तकरीब में। मैं तो बहुत अजीब सी गया तो बहुत अजीब सी तकरीब थी। वो सारे घर के लोग एक जानवर की शक्ल नुमा बुत के सामने खड़े सजदा कर रहे थे। मुझे वो बहुत अजीब सा लगा। मैं उससे मिले बिना ही उसी पल वहाँ से निकल आया। सारी रात सोचता रहा कि आखिर ये था क्या। ईसाई तो बुत परस्त नहीं होते। उसने अपना नाम ईसाइयों वाला ही बताया है। मुसलमान कभी हो ही नहीं सकता, तो क्या बुत परस्त है। और एक पल को मेरे अंदर का यहूदी जागा था और मुझे उससे शदीद घिन आई थी। लेकिन अगले ही पल इतने दिन बहैसियत दोस्त उसके साथ गुजारे गए लम्हे याद आ गए और फिर अपने इस हरकत पे गुस्सा आया कि मैं वाकई इतना घटिया था। वो मुश्किल वक्त में मेरे साथ था, मेरा दोस्त था, और मैं यूँ सोच रहा हूँ वो जो भी है उसका मसब उसके पास, मेरा मेरे। लेकिन जानने की जुस्तजू ज़रूर थी और बिल आखिर मैंने उससे पूछ ही लिया। जैकब इतना कह के थमा था और वेटर को इशारा देख के टकीला की एक और बॉटल मंगवाई। जॉन अब दूसरा सिगरेट फूंक रहा था। याहिया की बोतल भी अब आधी हो रही थी और माइकल अगले जाम के लिए उठ गया था। चंद लम्हों बाद माइकल वापस आ बैठा। जॉन ने अपना नया ग्लास उठाया और जैकब टकीला की ठंडी ठार बोतल को लबों से लगाकर एक घूंट भरा। जब मैंने उससे पूछा तो वो बातें गोल मोल कर गया और कहने लगा कि हम एक फरिश्ते की इबादत करते हैं और बस। उसकी इस बात से मुझे तसल्ली नहीं हुई, लेकिन मैंने तवज्जो भी नहीं दी। चंद दिनों बाद ही मैंने फेल होकर कॉलेज छोड़ दिया। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और अच्छी कोई नौकरी मिल नहीं रही थी। तब उसने मुझे अपने घर पे रोका और माली ताउन भी किया। उसका ख़ानदान काफ़ी अच्छा था, बहुत अमीर होने के बावजूद भी वो लोग काफ़ी सादा लोग थे। मैंने एक रोज़ उनके घर देखा कि एक शख्स आया है और सिया बैग में लाखों डॉलर उसके बाप को दे गया। जब मैंने मालूम किया तब भी उसने टाल दिया कि हम कारोबार करते हैं और ये मुनाफा है। एक रात मुझे बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं उठकर उन आवाज़ों का पीछा करता बेसमेंट में बने कमरे में गया तो मैंने देखा कि उनके ख़ानदान के तमाम मर्द बरहाना खड़े एक बच्चे को बीच में लेटाए कुछ पढ़ रहे हैं और वही पतला दुबला बच्चा सामने पड़ा है उस दुबले पतले से बच्चे के। मुझे बहुत डर सा लगा, वहशत सी हुई। मैं वहाँ से भागना चाहता था कि पकड़ा गया। मुझे लगा अब ये लोग मुझे मार देंगे, मगर उसके बाप ने मुझे उन सबसे छुड़ाया और कमरे में लेकर आया और फिर उसने कहा कि वो लोग शैतान परस्त हैं। जैकब ने कह के टकीला को मुंह से लगाया था और याहिया ने फटी आंखों से उसे देखा था। शायद उसके अंदर का मुसलमान जोश में आया था। सामने बैठे जॉन ने भी उसे हैरत से देखा था, जबकि माइकल भी हैरान था। उन्होंने मुझे कहा शैतान, जिसे मुसलमान इब्लीस मानते हैं, ईसाई लूसीफर बुलाते हैं, और कहा कि हम उसकी इबादत करते हैं और तुम हमारी छुपी हुई हकीकत जान गए हो और ये दुनिया और यहाँ के कवानीन हमारे खिलाफ हैं, हमारे दुश्मन हैं। इस शहर के इंटेलिजेंस वाले और पुलिस हमें ढूंढती है, इसलिए हम छुप के रहते हैं और जो भी हमारी इस छुपी हुई दुनिया के बारे में जान जाता है हम उसे किसी और दुनिया में भेज देते हैं। वरना एक और तरीका है हमारे पास तुम्हारी मदद का, अगर तुम चाहो तो। उसके बाप ने मुझे धमकाते हुए कहा। मैंने पूछा कि क्या, तो उसने मुझे कहा तुम हमारे साथ आ जाओ, इस अकीदे में शामिल हो जाओ कि शैतान ही असल खुदा है, नाउज़ुबिल्लाह, और इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मेरा वादा है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई नौकरी वगैरह है नहीं, करोगी क्या? अगर तुम यहाँ आते हो तो शैतान का चर्च तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें बहुत सी दौलत मिलेगी। जैकब ने कह के गहरा सांस भरा था। मैं फिर बिल्कुल वैसे ही साकित थी। मैं डर गया।
फिर से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने हाँ कह दी, सिर्फ ज़बानी ये सोच के कि अगर जान बची तो भाग जाऊंगा। और फिर उसने मेरी जान बख्शी करवाई ये कहकर कि ये हमारा अक़ीदा तैयार कर रहा है, और इस बात पे इन्होंने मुझे छोड़ा। लेकिन फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, वरना वो इबादत में शामिल करने की कोई तकरीब करते जिसमें मुझे शामिल होना पड़ता, लेकिन मेरी तबीयत के आगे वो इसे टाल गए। इसी दौरान उसके बाप ने मुझे कई किताबें पढ़ने को दी जिन्हें मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन एक ऐसी किताब थी जो बार बार मुझे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर रही थी। वो सियाह जल्द की किताब थी और उसके सनाटिक बाइबल उसके ऊपर तहरीर था। उन्होंने मुझसे मेरी तौरात छीन ली थी। मैं बुरी तरह वहाँ फंस गया था, मैं चाह के भी नहीं भाग पा रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था खुद पे कि मैंने उससे दोस्ती क्यों की। लेकिन फिर मुझे उसी पल ख्याल आया कि नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं। अगर उन बाकियों ने मुझसे दोस्ती की होती, अगर उस ईसाई मुसलमान ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया होता तो मैं इधर नहीं बहकता। और फिर मुझे उन सब के रवैये याद आए, एक के बाद एक नफ़रत ने मेरे दिल पर हमला कर दिया। मुझे सारा समेत सबकी ज़्यादतियाँ याद आई। उसी लम्हे ख्याल आया कि अगर यहाँ से गया तो कहाँ जाऊँगा। कोई मुझे नौकरी भी नहीं देगा, ना कोई दोस्त है ना रिश्तेदार, सब गांव में है। मैं भला क्या करूँगा शहर में, कहाँ भटकूँगा। और अगर वापस गया यूँ नाकाम तो वालिद क्या करेंगे। मैं बहुत मायूस हुआ। उस रोज़ मायूसी का ऐसा अंधेरा मेरे दिल पे छाया था कि दिल काला हो गया। मुझे लगा बाकी यहाँ कोई नहीं है मेरी मदद करने वाला, कोई खुदा नहीं है। मैं बैठे बैठे मुनकिर हो गया था, काफिर। और फिर मैंने वो किताब उठा ली और पढ़ने लगा। जैकब की सपाट आंखों में नमी सी उतरी थी, यानी नजरें उस पर से हटा ली थी। वहां का माहौल और शोरगुल अब भी वैसे ही था, बस सारा सकूत यहीं ठहर गया था। तुमने बिना खुदा को पुकारे ही ये मान लिया कि खुदा नहीं है, जॉन ने धीमे से कहा था। जैकब नजर भी नहीं उठा सका था, एक दर्द सा चेहरे पे आया था। फिर चंद लम्हों बाद वो गहरा सांस भरते बोला, जिस दिन पहली दफा सिनागोग गया था तो मुझे डर लगा था, क्योंकि मैं अब रबाई का बेटा नहीं बल्कि शैतान का आलाकार था। मैंने कीमती लिबास पहना था, मेरी हालत बिल्कुल बदल गई थी। मैं वहाँ तौरात सिखाने की आड़ में अक़ीदे शैतानियत का प्रचार करता था और कमज़ोर ईमान अफराद को बहुत आसानी से काबू कर लेता था और उन्हें उस अक़ीदे पर ले आता था। मुझे शैतान के चर्च से लाखों डॉलर हर हफ्ते पहुँच जाते थे। मैं ऐश की ज़िंदगी जी रहा था। कहीं ना कहीं मैं खुद भी शैतान बन गया था। मुझे कोई बुराई नहीं लगती थी, ना ही उस बुराई को इख्तियार करते हुए मुझे कोई शर्म महसूस होती थी। इस दौरान मैंने शहर में बहुत महंगा मकान भी ख़रीदा। मैं सिनागोग में इबादत के बाद फ़ारिग वक्त में नए लोगों को अक़ीदे की तालीम देता। मैंने इस खेल में सबसे ज़्यादा शिकार औरतों का किया है, ना सिर्फ अक़ीदे में शामिल करने की हद तक बल्कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए भी। मैं जीतता चला गया और ये शैतानी खेल एक लंबे अरसे तक चलता रहा। मैं पुलिस और इंटेलिजेंस वालों की नज़रों में भी आया, लेकिन कभी पैसा, कभी ताकत, कभी जहानत या फिर किस्मत से बच निकला। अजीब सा हो गया था मैं। मुझे किसी बात का एहसास नहीं रहा था। मैं किसी गुनाह को करने में कोई शर्म महसूस नहीं करता था। मैंने अनबियाओं की अज़मत से इनकार किया, खुदा की मौजूदगी से इनकार किया, मैंने हर अच्छाई से इनकार किया। मैंने बुर्गिज़ीदा हस्तियों को गालियाँ बकी। मैंने ज़ना, बदकारी, ज़ना बिल जबर, धोखा, दही, ख़बन और हमजिन्स परस्ती तक की। मैंने ये तमाम गुनाह किए। मैंने इन तमाम रबाई या प्रोफेसर्स या ऐसे लोग जो मेरे रास्ते में आके रुकावट बनते या मुझे जिन पे शक होता, हमारे छुपे हुए खुफिया अस्करी ग्रुप के ज़रिए मैं उन्हें मरवा देता। मैंने लोगों को इस अक़ीदे पे मुतवज्जा करने के लिए तौरात तक की ज़बान मरोड़ कर पढ़ी और लोगों को गलत मानी समझाई। नीज़ ये कि मैंने हर गुनाह कर लिया। एक शख्स अक़ीदे के किसी काम से फ्लोरिडा जा रहा था। एयरपोर्ट के लॉन्च पर मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। वो 19-20 बरस का एक जिप्सी सा लड़का था। खूबसूरत था लेकिन पुरस्कार सा था। सिर्फ कॉफ़ी पे कॉफ़ी पिए जा रहा था। मैं उसके साथ ही बैठा था। वो चुप सा फर्श को देखे जा रहा था। मुझे
उसमें बहुत कशिश सी महसूस हुई, पता नहीं क्यों। वहाँ एक छोटी बच्ची किसी किताब पे बैठी किसी बात पे अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग रही थी और वो उसके साथ आ बैठी थी और बहुत खफा थी। वो लड़का उस बच्ची से बातें करने लगा। उसने बच्ची को बताया कि माँ उसकी कोई फरमाइश पूरी नहीं कर रही थी। तभी उसने बच्ची को कहा कि माँ फरमाइश पूरी नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि तन्हाई सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है और ये इंसान को शैतान के करीब ले जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो तन्हाई में कोई अच्छी चीज़ के करीब जाते हैं। जैसे मैं चला गया कॉफ़ी के करीब। वो बच्ची बहुत हंस के उससे बात कर रही थी। मुझे हैरत भी हुई क्योंकि जितनी देर मैं उसके साथ बैठा था उसका चेहरा सपाट था, तासुरात बिल्कुल भी नहीं थे। पहली नज़र में उसे देखकर यूँ लगता था जैसे वो बरसों पहले मुस्कुराना छोड़ चुका हो। उसके जुमले पे मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन फिर मुझे लगा आज फिर मुझे एक शिकार मिल गया। उसने बच्चे को बहुत समझाया और फिर उसे उसकी माँ के पास भेज दिया। मैंने उससे बात बढ़ाने के गर्ज से एयरपोर्ट पे तबसराती बातें की। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर बातों में शामिल हो गया। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं, बस फिर मैं बातों बातों में उसे अपनी तरफ ले आया। मैंने कहा लोग शैतान को बिला वजह बुरा कहते हैं। अभी तुमने ही कहा तन्हाई हमें शैतान के करीब ले जाती है, तो ये शैतान बाकियों से तो बेहतर होता है ना, कम से कम हमें तन्हाई में छोड़ता तो नहीं। पहले मुझे लगा वो ईसाई है, लेकिन उसने मुझे बहुत अजीब सी बात कही। उसने कहा यही तो शैतान की चाल होती है, वो तमाम कमज़ोर लोगों को तन्हाई में ही बहकाता है क्योंकि वो इंसान का दुश्मन है। तुम्हें क्या लगता है शैतान मुनकिर खुदा है? नहीं, वो मुनकिर खुदा तो नहीं, वो तो मुनकिर इंसान है। उसने खुदा को पूरी कायनात में जाके सजदा कर लिया, लेकिन इंसान को नहीं किया। वो इबादत गुजार ज़रूर था, लेकिन फर्मा बरदार नहीं था। उसे अपने होने का घमंड था, इसीलिए उसने हमें नहीं माना। उसकी बात में मुझे गुस्सा सा आया। वो बेवकूफ़ था और यकीनन मुसलमान भी, लेकिन मैंने फिर भी शैतान का दिफा किया। लेकिन क्या ये खुदा की नाइंसाफ़ी नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, कि उसने इख्तलाफ राय करने वाले के साथ आमरीत का तरीक़ा इख्तियार किया? वो तो खुदा है, वो ख़ुद को खुदा कहता है, तो क्या उसे ये जचता है तुम मुसलमान हो तो खुदा की बहुत सी शानकन बातें हो? वो मुस्कुराया और कहने लगा तुम्हें किसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ? मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं बस इंसान हूँ और इसीलिए शैतान से नफ़रत करता हूँ क्योंकि उसने मेरी अज़मत से इनकार किया था। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो इख्तलाफ राय कर रहा था, लेकिन तुम ये गलत कह रहे हो कि खुदा ने आमरीत दिखाई। वो खुदा है, उसे शैतान का खालिक। उसने कहाँ कोई रद्द अमल दिया, उसने तो बस शैतान को छोड़ दिया, खुलेआम जाने दिया। उसने इख्तलाफ राय को ख़त्म नहीं किया। वो तो खुदा है, चाहता तो इस फितने को वक्त पे ही ख़त्म कर देता, लेकिन छोड़ दिया इसीलिए कि लोग खुदा को पहचाने, सही और गलत का फ़र्क पहचाने, ताकि मेरे और तुम्हारे दरमियान फ़र्क रहे। और उसने ये बात मुझे बहुत गहरी नज़रों से देखते हुए कही थी, जैसे लगा कि मेरी रूह कांप गई हो और उसने मेरे अंदर झांक लिया हो। उसकी आंखों में आग थी, बहुत सी आग। उसने कहा इस दुनिया में बहुत से तुम जैसे हैं जो उसे धुतकारा हुआ फरिश्ता कहते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो बचा हुआ जालिम है जिसे खुदा ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया ताकि उसे उसके ज़रिए खुदा को पहचाना जाए। बस उसे जाने दिया, उसे उसके हाल पे छोड़ दिया, ना उसे माफ़ किया ना सज़ा दी, बस यूँ ही उसके हाल पे उसे छोड़ दिया है। और जानते हो जिन लोगों को खुदा उनके हाल पर छोड़ देता है वो कैसे हो जाते हैं? वो मेरी आंखों में देखते हुए कहता गया, बिल्कुल तुम जैसे। वो कहता हुआ उठ गया, लेकिन मुझे लगा कि वक्त उसी लम्हे में थम गया है। वो मेरी रूह को लेकर चला गया। वो चंद कदम जाके थमा और फिर पलट के बोला, वैसे तुमने शायद मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी। मैंने कहा था तन्हाई इंसान को शैतान के करीब ले जाती और बेहतर है कि तन्हाई में भी कोई अच्छी चीज़ अपना ली जाए, जैसे मैंने कॉफ़ी। लेकिन ये इख्तियार तुम्हें नहीं,
तुम्हें तुम्हारी पसंद क्या है, तुम्हें इसका इख्तियार है। वो कहकर आंख मारता हुआ चला गया और मैं चेकअप कह के सांस लेने को रुका। मैं सारी रात एयरपोर्ट पे बैठा रह गया। मैं पूरी ज़िंदगी को फिर से याद करने लगा और हर जगह मुझे मेरी ही कमज़ोरी नज़र आई जिसने शैतान को मुझ पे हावी किया। मैं अपनी हकीकत जान गया था। मैंने अपने खुदा के साथ दुश्मनी की और अपनी आफ़त को ख़त्म कर दिया, गोया खुद को बर्बाद कर दिया। नहीं, ये मत समझना कि मैं इतना अजीम हूँ कि मुझे मेरी गलती और गुनाहों का एहसास हो गया। मुझे एहसास नहीं हुआ था, बस मैं सच जान गया था कि मैं गलत हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और भागने लगा। किससे मैं खुद नहीं जानता था, बस भागता गया। मैं खुद एहतसाबी में मुब्तला हो गया। मैं सिनागोग गया, वहाँ सब जानते थे कि मैं शैतान का आलाकार हूँ। किसी ने मुझे नहीं अपनाया, सब ने मुझे खुदा का दुश्मन कह के मारा। मैं खुद को लोगों को कहता कि मारो, मुझे मारो और मार दो। मुझे हर दूसरे शख्स की शक्ल में अपनी शैतानी शक्ल दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था मैं ख़त्म हो गया हूँ। मैंने कई बार खुदकुशी की कोशिश की, पुलिस के पास गया, मैंने अपना हर गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने मेरी निशानदेही पर एक ग्रुप को पकड़ लिया, लेकिन मुझे पागल खाने भेज दिया। मैं पागल खाने नहीं जाना चाहता था, मैं मरना चाहता था, लेकिन कोई मुझे मारता ही नहीं था। और फिर मुझे समझ आ गया, मेरी सज़ा मौत नहीं ज़िंदगी है। मैं अपने गुनाहों के साथ जीऊँ और मैं उनके साथ जी रहा। वक्त के गुजरने के साथ साथ मेरे वजूद ने मुझे उनके साथ जीना को सिखा दिया। मैं बेहिस बेज़मीर हो गए, एक ऐसा जिस्म जिसमें रूह नहीं हो, कोई एहसास नहीं हो, वैसा बन के जीने लगा। बस एक यही तरीक़ा था जो मुझे कुछ वक्त के लिए इस दुनिया में ज़िंदा रख सकता था। मैंने अपनी आँखों के सामने चोरी, ज़्यादती, कत्ल होते देखे, लेकिन मैं यूं ही चलता चला जाता हूँ जैसे कोई आम सा मंजर हो। अगर कोई मुझे मदद के लिए पुकारे तो भी मैं मदद नहीं करता, मैं यूं ही निकल जाता हूँ। मुझे मेरी ज़ात से नफरत है और मैं जानता हूँ एक दिन कहीं किसी राह पे मेरी मुलाकात मौत से ज़रूर होगी और तब मैं पुरसुकून हो जाऊँगा, आज़ाद हो जाऊँगा। जैकब कह के थमा था और उसने गहरा सांस भरा और फिर बारी बारी सबकी तरफ देखा। जॉन ने अगली सिगरेट सुलगा ली, नया ग्लास मंगवा लिया। उसका चेहरा सपाट था, आंखों में खालीपन था। उसने माइकल को देखा, वो नए ग्लास के लिए वॉलेट चेक कर रहा था। हाँ, कुछ डॉलर्स मजीद पड़े थे, वो अभी और मंगवा सकता था। चेहरे पे लापरवाही। और फिर याहिया की तरफ पलटा। वो नजरें झुकाए गुमसुम सा बैठा था, चेहरे पे कोई तासुर ना था। अपने गिलास पे हाथ जमाए चुप सा, शायद उससे चिढ़ना शुरू हो गई थी। जैकब ने फिर इन तीनों को देखा। क्या लोग इसे जज नहीं कर रहे? क्या इन्हें इसके गुनाह से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या उन्हें ये शख्स काबिल नफरत नहीं लगा? क्या उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ये गुनहगार है? क्या तुम लोगों को बुरा नहीं लगा? जैकब बामुश्किल इतना ही बोल पाया और उन सब ने नफी में सर हिलाया। अपने आप से नफरत की इंतहा कर दी है, अब किसी दूसरे से नफरत नहीं हो पाती, चाहे वो कोई भी हो, याहिया ने कहा। तो जैकब भी मुस्कुराया। इससे ज़्यादा भला क्या बुरा होगा? मैंने खुदा से दुश्मनी कर ली, अपने आप को बर्बाद कर दिया। इससे ज़्यादा क्या बुरा होगा? मैं जानता हूँ मेरे लिए सिर्फ जहन्नुम है, आग का घर। जैकब के कहने पे माइकल ने वेटर को ऑर्डर दिया। मैंने एक राहिब से सुना था, खुदा अपने हक़ को माफ़ कर देगा, उसके बारे में बाद में पूछेगा, लेकिन अगर तुमने इंसानियत के साथ कुछ बुरा किया तो वो माफ़ नहीं करेगा। मुझे तुमसे ज़्यादा बुरे या बड़े गुनाहगार नहीं लगे तुम, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या हूँ। माइकल ने कह के वेटर को ग्लास का ऑर्डर दिया और वेटर के जाने के बाद जैकब से बोला, तो फिर बताओ हमें अपना गुनाह। जैकब ने माइकल को कहा तो तकलीफ़ मुस्कुराहट, दर्द भरी सी थकान के साथ उसने गहरा सांस भरा और इन तीनों को देखा। वो तीनों ऐसे ही देख रहे थे। माइकल सर इस बात में हिलाते हुए नज़रें झुकाने लगा।